سری نگر ہے، پیشیں خبریں۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ خواتین کے ریزرویشن سے متعلق بل راجیہ سبھا میں غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش، بل پر بحث جاری۔ وزارت صحت نے پی جی نیٹ 2023 کاؤنسلنگ کے لیے میڈیکل اور ڈینٹل پوسٹ گریجویٹ کورسوں کی 10% میں کی کٹوتی۔ مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہارٹیکلچر کا دسو پامپور میں کشمیر سیفرن ٹریڈ سینٹر کا دورہ، زعفران شعبے کی ترقی کے سرکار کے عزم کا کیا اعادہ۔ اور مرکزی حکومت نے سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع کے شعبے میں راشٹریہ وگیان پرسکار کے نام سے نئے قومی ایوارڈز کیے قائم۔ خبریں تفصیل سے۔ خواتین کے ریزرویشن سے متعلق بل آج راجیہ سبھا میں غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ آخری خبریں آنے تک ایوان میں اس بل پر بحث جاری تھی۔ یہ بل لوک سبھا اور ریاستی اسمبلی میں خواتین کو 1/3 ریزرویشن فراہم کرے گا۔ اس بل کو، جسے ناری شکتی وندھن ادھینیم بھی کہا جائے گا، مرکزی وزیر قانون اور انصاف ارجن رام میگھوال نے ایوان بالا میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بل ملک کی خواتین کو بااختیار بنانے کو فروغ دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امرت کال میں ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی سمت میں بھی ایک اہم قدم ہے۔ وزیر موصوف نے خواتین کے فائدے کے لیے اجولا یوجنا، مدرا یوجنا اور ایسی ہی کچھ دیگر اسکیموں کو لانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ایس سی اور ایس ٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے 33% ریزرویشن بھی موجودہ کوٹے کے اندر فراہم کیا جائے گا اور اس کے لیے مردم شماری اور حد بندی ضروری ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے بی جے پی لیڈر جے پی نڈا نے یقین ظاہر کیا کہ ناری شکتی وندن ادھینیم، جسے کل لوک سبھا میں منظور کیا گیا تھا، راجیہ سبھا میں متفقہ طور پر پاس ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی ثقافت میں خواتین کا ہمیشہ اہم کردار رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی ہے بلکہ خواتین کو بااختیار بنانا چاہتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 9 سالوں میں نریندر مودی حکومت نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کئی فیصلے کیے ہیں۔ بل کی حمایت کرتے ہوئے کانگریس لیڈر رنجیت رنجن نے کہا کہ پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی بڑھنی چاہیے، تاہم انہوں نے خواتین کے ریزرویشن بل کو پارلیمنٹ میں لانے میں تاخیر پر سوال اٹھایا۔ ڈی ایم کے کی ڈاکٹر کنیموجی نے بل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ خواتین ریزرویشن بل حق کا معاملہ ہے، نہ کہ خواتین کے حق کا۔ اے اے پی کے سندیپ کمار پاٹھک نے بھی بل کے حق میں بات کی اور کہا کہ قانون سازی سماج اور ملک کے لیے بہت اہم ہے۔ بی آر ایس کے ڈاکٹر کے کیشو راؤ نے بل کی حمایت کی اور اسے ایک تاریخی قانون سازی قرار دیا۔ یاد رہے کہ خواتین ریزرویشن بل کو لوک سبھا نے کل منظوری دی تھی۔ اس بل کے حق میں 454 جبکہ اس کے خلاف صرف 2 ووٹ پڑے۔ ایک تاریخی اقدام میں راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے خواتین کے ریزرویشن بل کے پیش نظر ایوان بالا میں نائب چیئرپرسنوں کا ایک خواتین پینل تشکیل دیا ہے۔ پینل میں آج کے لیے صرف 13 خواتین راجیہ سبھا ممبران شامل ہیں، کیونکہ راجیہ سبھا خواتین کے ریزرویشن بل پر بحث کر رہی ہے، جسے ناری شکتی وندن ادھینیم 2023 کہا جاتا ہے۔ پینل میں پی ٹی اوشا، جیا بچن، سروج پانڈے، ڈولا سنگھ، سلطا دیوا اور ڈاکٹر فوزیہ خان شامل ہیں۔ چیئرمین نے اس بات پر زور دیا کہ کرسی پر ان کی موجودگی بڑے پیمانے پر دنیا کو ایک طاقتور پیغام دے گی اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ تبدیلی کے اس عہد کے دوران ایک کمانڈنگ پوزیشن پر فائز ہیں۔ وزارت خزانہ نے آج گھریلو بچتوں اور معیشت میں اس کے مجموعی اثرات کے حوالے سے کسی پریشانی کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف مالیاتی مصنوعات کے لیے صارفین کی ترجیحات میں تبدیلی ان رجحانات کے پیچھے بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت نے کہا کہ جون 2020 اور اس سال مارچ کے درمیان بغیر کسی بڑے فرق کے گھریلو مجموعی مالیاتی اثاثوں کے اسٹاک میں 37.6% کا اضافہ ہوا اور گھریلو مجموعی مالیاتی واجبات کا اسٹاک 42.6% بڑھ گیا۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے نیٹ 2023 کی پی جی کاؤنسلنگ کے لیے میڈیکل اور ڈینٹل پوسٹ گریجویٹ کورسز کی 10% میں تخفیف کی ہے۔ اب سبھی زمروں میں کوالیفائی کرنے کی فیصد گھٹا کر 0 کر دی گئی ہے۔ میڈیکل کاؤنسلنگ کمیٹی ایم سی سی نے کل ایک نوٹس جاری کر کے اس بات کا اعلان کیا۔ نیٹ پی جی 2023 میں شرکت کرنے والے سبھی امیدوار اب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کاؤنسلنگ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔
मेडिकल के तलबा नोटिस को सरकारी वेबसाइट mcc.nic.in पर देख सकते हैं। MCC ने ऐलान किया कि 800 नंबरों में से 291 कट ऑफ की जगह अब ये सिफ्र कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस नोटिस की वजह से काउंसलिंग के लिए हकदार हो गए हैं, उनके नीट पीजी काउंसलिंग 2023 के तीसरे दौर के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की गर्ज से अमल फिर से शुरू कर दिया गया है। उम्मीदवारों को नीट पीजी के तीसरे दौर के लिए रजिस्ट्रेशन कराने से मुतालिक तारीखों के बारे में MCC की वेबसाइट पर जल्द नोटिस जारी किया जाएगा। मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर प्रिया रंजन ने आज दिसू पांपोर में इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेड सेंटर का दौरा किया। सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना करते हुए उन्हें मुतल्लिका अफसरों ने वहां दस्तयाब मुख्तलिफ सहूलियात के हवाले से जानकारी दी। बाद में वहां एक मीटिंग से खिताब करते हुए ज्वाइंट सेक्रेटरी ने जाफरान शोबे की तरक्की के सरकार के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी जाफरान की GI टैगिंग ने इसकी अहमियत कौमी और बैन अक़वामी बाजारों में मजीद बढ़ा दी है। इसके बाद प्रिया रंजन ने IGC वासीपोरा पुलवामा का दौरा किया और वहां मिशन प्रोग्राम के तहत कायम की गई मुख्तलिफ कोल्ड स्टोरेज सहूलियात का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर के साथ मिलकर 3 माह का फ्रंट ऑफिस एसोसिएट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज किया। इस तरबीती प्रोग्राम का इफ्तिताह डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर निसार अहमद वानी ने किया। यह पहल ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को जरूरी महारतों से आरास्ता करने और मेहमान नवाजी के शोबे में एक कामयाब करियर को यकीनी बनाने के लिए शुरू की गई है। इस मौके पर डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट ने नौजवानों के रोजगार में इजाफे और खित्ते की इक्तिसादी तरक्की में हिस्सा अदा करने में ऐसे तरबीती प्रोग्रामों की अहमियत पर रोशनी डाली। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टार्टअप नॉलेज एक्सचेंज सीरीज के एक हिस्से के तौर आज सैमपुरा कैंपस में एक एक्सपर्ट सेशन का इनेकाद किया। इस सेशन में मुमताज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की के साबिक तालिब इल्म डॉक्टर वसीम जावेद, ARBA एक्सेलरेटर मुंबई के बानी और डायरेक्टर अब्दुल मजीद अंसारी और नेशनल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नुमाइंदे MA शेख शामिल थे। उन्होंने अपनी अनमोल बसीरत और तजुर्बात को स्टार्टअप और ख्वाहिशमंद कारोबारी अफराद और स्टार्टअप्स के सामून के साथ शेयर किया। JKEDA के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने तकरीब की सदारत की। अपने खिताब में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में हुकूमत के पुख्ता अज़्म पर रोशनी डाली, जिसमें मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में एक मुतहरिक स्टार्टअप माहौलियाती निजाम को फरोग दिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने जिले में स्मार्ट मीटरों की तनसीब के सिलसिले में आज एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में KPDCL के अहदेदारों ने बताया कि जिले में स्मार्ट मीटरों की तनसीब शुरू कर दी गई है, जबकि जिला भर में महलवार तरीके में स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट की सूरत हाल पर तफसीली प्रेजेंटेशन दी गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका हुक्काम और पुलिस को हिदायत दी कि स्मार्ट मीटरों की तनसीब के अमल में किसी भी शख्स की तरफ से मुजाहमत का ऐसे तरीके से मुकाबला किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई शख्स रुकावटें पैदा करता है और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इत्तलात और नशरियात वजारत के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से शुपियां में 2 रोजा आउटरीच प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शुपियां में मुनाकिद किया गया और इसका मकसद सरकार की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में फोटो नुमाइशों, एक्सपर्ट लेक्चरों और दीगर तरीकों से अवामी बेदारी पैदा करना था। प्रोग्राम के आज आखिरी रोज मानिशात की बिद्दत के बारे में जानकारी फराहम करने पर तवज्जो मरकूज रही। इख्तितामी तकरीब पर SSP शुपिया तनुश्री मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थी। उन्होंने अपने खिताब में आउटरीच प्रोग्राम को मुनाकिद करने और मानिशात की बिद्दत के बारे में बेदारी पैदा करने का मौजू चुनने के लिए CBC की सराहना की। काजीगुंड में उजरू गांव के नजदीक नवली टनल के मकाम पर आज एक मोटरसाइकिल सवार एक चलती गाड़ी की जद में आ गया, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत वाक़ई हुई। हमारे कुलगांव नुमाइंदे ने खबर दी है कि दीपक शर्मा साकिन मुठी जम्मू का रहने वाला मोटरसाइकिल सवार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में MBBS की तालीम हासिल कर रहा था और ये अपनी मोटरसाइकिल पर जम्मू से श्रीनगर आ रहा था। इस हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर जाए वारदात से फरार हो गया और उसने अपनी गाड़ी में वहीं छोड़ी।
जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। काजीगुंड पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और छानबीन शुरू कर दी है। मरकजी हुकूमत ने आज साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के शोबे में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से नए कौमी अवार्ड्स कायम किए हैं। ये अवार्ड साइंस, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के इख्तिरा के शोबे में साइंसदानों, टेक्नोलॉजी के माहिरों और इख्तिराकारों के काबिल जिक्र और हौसला अफजा ताउन के इतराफ में अता किया जाता है। इस अवार्ड के 5 जुमरे हैं जो इस तरह हैं: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, शांति स्वरूप भट्टागर और विज्ञान टीम। इन अवार्ड्स का ऐलान नेशनल टेक्नोलॉजी के दिन यानी 11 मई को किया जाएगा और इसके लिए तकरीब का इनेकाद हर साल कौमी खलाई दिन यानी 23 अगस्त को किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 13 मौजूदात पर दिए जाएंगे, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, रियाजियात और कंप्यूटर साइंस, अर्जियात, दवासाजी, इंजीनियरिंग साइंसेज, ज़रूरी साइंस, माहौलियाती साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, एटमी तवानाई, खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी व दीगर शोबे शामिल हैं। भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से राबता कायम करने की तैयारियां कर ली हैं। लैंडर रोवर को 14 दिन के लिए स्लीप मोड में रखा गया था। कल चांद पर जब दिन की शुरुआत होगी तो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शमसी पैनल्स के जरिए अपनी बैटरी चार्ज करेंगे। चांद पर शिव शक्ति पॉइंट तवज्जो का मरकज रहेगा, जहां पर ये दोनों पेलोड्स स्लीप मोड में रखे गए थे। चांद पर नए दिन की शुरुआत होते ही इसरो का जमीनी अमला इन पेलोड्स पर मौजूद साइंसी आलात पर काम करना शुरू कर देगा, जब पूरी तरह सूरज की रोशनी मौजूद होगी। अगस्त में लैंडर और रोवर ने अहम साइंसी डेटा भेजा था। उसने चांद पर मौजूद सल्फर और दीगर मिनरल्स की तस्दीक की थी। G20 की भारत की सदारत के तहत बैनुल-अक़वामी बुनियादी ढांचे से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की चौथी मीटिंग आज मध्य प्रदेश के खजूरा में वाक़े महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो गई है। मुस्लिम मुल्कों के मंदोबीन के लिए आज सुबह एक योगा सेशन का एहतमाम किया गया। इस 2 रोज़ा मीटिंग में 50 से ज्यादा मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं, जो बुनियादी ढांचे को एक असासे के तौर पर ढालने समेत बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल कर रहे हैं, ताकि मियारी शहरी बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग दिया जाए और लचकदार, पायदार और शमूलियाती शहरी बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के लिए सरमायाजाती ज़राए को जमा करने के इख्तिराई तरीकों की शनाख्त की जाए। इस मीटिंग का एहतमाम ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के मुश्तरका सदारत में वजारत खजाना के जरिए किया जा रहा है। वजारत दिफा ने कहा कि भारत और अमेरिका की फौज नई दिल्ली में इस महीने की 25 से 27 तारीख के दरमियान मुश्तरका तौर पर फौजी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करेगी। 35 मुल्कों के फौजी सरबरा और मंदोबीन इस 13वीं भारत बहरुल-काहिल IPACC फौजी सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजारत ने कहा कि इसमें खासतौर से भारत बहरुल-काहिल की जमीनी अफवाज के फौजी सरबरा और ऊंचे ओहदे वाले रहनुमा शामिल होंगे। वजारत ने मजीद कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में तहफ़्फ़ुज़ और मौजूदा मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।